जेफरी का एक हफ्ते बाद बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम है। मैंने पूरा शेड्यूल फिक्स कर लिया है। मैं एक हफ्ते में हर एक चीज खत्म कर दूंगा। पर पिछले 6 दिनों से जेफरी बस मोबाइल को स्क्रॉल कर रहा था। ओहो, मैं बोला ना कि मैं 12 घंटे में अपना सारा सिलेबस खत्म कर दूंगा। पर इसके बाद जब जेफरी ने अपनी पहली बुक खोली, उसका पहला पेज पढ़ा, तो फिर वो बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड हो गया। अरे ये कितना ज्यादा है, मैं बहुत ज्यादा स्ट्रेस में आ जा रहा हूँ, एजुकेशन सिस्टम ही बेकार है। और उसके बाद वो मर गया। एडोनिस वो काम जो एवरेज लोग एक हफ्ते में करते, उसको बस एक दिन में अकॉम्प्लिश कर लेता। और ऐसा हो भी क्यों ना, एडोनिस हर एक काम 12 घंटे तक करता। और आपको क्या लगता है एडोनिस यहाँ पर कैसे आया? प्रोडक्टिविटी के कारण। अब मैं अपनी स्टोरी बताऊं उससे पहले आप ये वीडियो देखो। The constraint for someone who's not making any money in business but wants to is simply just productivity. If the people think it's the business model or anything, it's like, can you just sit down and work for a few hours? Because truthfully, if we take the average young man and we put like CCTV in his room, we wouldn't want to see, like, first of all, because he'd be touching his dick all the time. This is literally like level 0 guys. The reason why they're not making money is because, like, when they're supposed to be working, they're genuinely masturbating. It's almost like insanity. Let's say, okay, they're past that point, they're into self-improvement 6 months, right? Even then, his productivity is so fucking bad that I could do like a week's worth of work in the same, like, in 3 hours of his work, even more. If we recorded him, what we'd see is he's working for 30 seconds. If he's even sat down at all, let's say he's procrastinated for a little while, but let's say okay, he's actually sat down, he's working for 30 seconds, 60 seconds, and his brain's farted and he's went elsewhere. His phone's had a little notification because he's not putting it on silent mode. He checks it quickly, ends up scrolling for a little bit. He goes, instead of like actually doing the hard work task, he's just fucking around with like changing the logo of his business or changing his Instagram bio or something. Randomly stands up, goes towards his mirror and does like the Z's pose or some shit. It's like, just, if most guys seem mentally disabled, honestly, and I'm speaking for myself here. At the same time, if you gave me a book and analyzed my ability to comprehend it, let's say 4 or 5 years ago, I would have passed for some kind of mental disability like ADHD. I'd read one sentence and my brain would go elsewhere and I'd have to almost read the sentence again. And when I say this in talks that I give, I always say to the boys, like on a Zoom call, type 1 if you relate to that. And it spams with 1. Most people's brains are like, this is why I really don't think you need to overthink what business model you get into. Because truthfully, like a capable man can make money in almost every business model, like any of the recommended ones. What you need is like to become capable in the first place. इस समय प्रोडक्टिविटी आपका रियल कंस्ट्रेन है। आप जानते हो कि आपको किस चीज में कितना हार्डवर्क करना है, पर आप उस चीज में अपना 100% दे नहीं पा रहे हो क्योंकि आप हर समय डिस्ट्रैक्ट हो जा रहे हो या फिर आपको काम करने का बिल्कुल भी मन नहीं करता है। और मैं भी 1 साल पहले एकदम ऐसे ही था कि मुझको पता था कि मुझे करना क्या है, मुझे कैसे अपनी लाइफ को जीतना है। पर इसके बाद भी मैं सुबह उठ के सबसे पहले वीडियो गेम खेलना शुरू कर देता, लगभग 3 से 4 घंटा, और उसके बाद लगभग 6 बार फैप करता पूरे दिन में। इस समय मेरी एनर्जी बहुत ज्यादा कम हो गई थी। फिर मैं इसके बाद वापस से वीडियो गेम खेलना शुरू कर देता। मेरे पास कोई भी अच्छी डाइट नहीं थी, कोई भी मॉर्निंग रूटीन नहीं, कुछ नहीं, ना मैं नेचर में जाता, बस हर समय जंक फूड, वीडियो गेम और पॉर्न, ये चीज मेरी बन चुकी थी। और इसी को मैं हर दिन रिपीट करता हुआ चला जा रहा था, जिसकी वजह से मेरा पूरा ब्रेन डिस्ट्रॉय हो गया था। मैं इस चीज से बहुत दुखी था और मुझको पता था कि मुझे जिम जाना पड़ेगा, अपनी फिजिक को अच्छा बनाना पड़ेगा। पर इसके बाद भी मैं कोई भी एक्शन नहीं ले पा रहा था। मैं बस घर में बैठ के वीडियो गेम खेल रहा था क्योंकि ये सारी चीज बहुत ज्यादा हार्ड थी। पर इसके बाद अचानक से जब मैंने बहुत सारी प्रोडक्टिविटी टैक्टिक जो बहुत आसान थी उसको अपनी लाइफ में अप्लाई करना शुरू कर दिया, तो फिर मेरा सारा एडिक्शन बस एक दिन में छूट गया। मैं जिम जाना शुरू कर दिया, अच्छी फिजिक बिल्ड कर लिया, बहुत सारा अट्रैक्शन मिलना शुरू हो गया, और जिसकी वजह से मैं अभी तक अपने बिजनेस पर 12 घंटे तक फोकस लगा सकता हूं। मैं 12 बजे तक बस अपने काम में अपना सारा फोकस लगाता हूं, और ये सारी चीज हुई है प्रोडक्टिविटी के कारण। तो अगर आपको इस समय बस 2 ही हफ्ते में अपने वर्क रेट को 10x करना है, अपनी पूरी लाइफ को बस 2 हफ्ते में ट्रांसफॉर्म करना है, तो फिर आप मेरे कोर्स को अभी परचेज कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन के लिंक में अभी के अभी क्लिक करो और हर एक चीज आपको पता चल जाएगी कि आखिर वहां पे है क्या। अब इसके बाद हम लोग आते हैं अपने पहले पॉइंट पर, जो कि है हैबिट ट्रैकर। हम लोग हर समय अपनी हैबिट में क्यों फिसल जाते हैं? हम लोग क्यों हर दिन कोई भी कंसिस्टेंट काम नहीं कर पाते हैं? क्योंकि हम लोग को पता ही नहीं है हमको करना क्या है। हम लोग हर दिन ऐसे मोड पर रहते हैं जहां पे हम लोग अपने दिन को हर समय डिसाइड करते रहते हैं
जिसकी वजह से हम लोग अपने इमोशन के कंट्रोल में आ जाते हैं। हम लोग वो काम नहीं करते हैं जो हम लोग करना चाहते थे। इसीलिए आपको अपना हैबिट ट्रैकर बनाना है, जहां पे आप अपनी सारी हैबिट को लिस्ट कर दोगे। ऊपर के साइड और लेफ्ट साइड आपको 1 से लेकर 30 तक के दिन लिखने हैं और इन सारी चीजों को, इन सारी हैबिट को हर समय टिक करना है, हर समय इन सारी हैबिट को कंप्लीट करना है, जिसकी वजह से आपको पता रहेगा कि आपको पूरे दिन में करना क्या है और आप बहुत कम ही उन सारी हैबिट में फिसल सकते हो, क्योंकि आपके ब्रेन को पता रहता है कि आपको करना क्या है और आप वही काम हर समय करते रहते हो। इस हैबिट ट्रैकर को बनाओ और अपनी दीवार पे चिपका लो। अब मैं ये बोलूंगा कि इस समय बहुत सारे दिन मिस होंगे, आप बहुत सारे दिन बहुत बेकार फील करोगे, पर इस समय आपके पास एक डाटा आ जाएगा कि अच्छा, मैंने 30 दिन में से 15 दिन ही नो फैप को फॉलो किया है और 15 दिन मैंने फैप किया है। तो फिर अगले महीने आप और बेकार फील करोगे और अपने आप को और ज्यादा लेवल अप करोगे। पर कभी भी अपने हैबिट ट्रैकर को टिक करना मत भूलना। बहुत सारे लोग जब उनका दिन बेकार जाता है तो फिर वो लोग हैबिट ट्रैकर को टिक करना ही छोड़ देते हैं, जिसकी वजह से वो लोग अकाउंटेबल नहीं होते हैं। फर्क नहीं पड़ता है कि आपका दिन कितना बेकार गया है, आपको हर समय अपने हैबिट ट्रैकर में टिक या फिर क्रॉस लगाना है, जिसकी वजह से आप उसके पीछे अकाउंटेबल हो जाओगे, जिसकी वजह से आपको अपने ऊपर बेकार फील होगा और आप अगले महीने, अगले दिन और अच्छा काम करने के लिए जाओगे। और फिर हम लोग का स्टेप 2 है लिमिट योर इनपुट्स। तो फिर इस समय हम लोग को लगता है कि बहुत बड़ी बड़ी चीजें हम लोग के टाइम को खा रही हैं, पर आपकी लाइफ में बहुत सारी छोटी छोटी चीजें आपके टाइम को खा रही हैं और जिसकी वजह से आप कोई भी अच्छा काम नहीं कर पा रहे हो। बहुत छोटी छोटी चीजें आपकी ब्रेन पावर ले रही हैं, जैसे आपको कपड़ा क्या पहनना है, आपको नहाना क्या है, आपको साबुन क्या लगाना है, आपको परफ्यूम क्या लगाना है। ये सारी चीजें आपका बहुत ज्यादा टाइम ले रही हैं कि आपके पेरेंट्स ने आपको बुला लिया, आपको शॉपिंग पे जाना है, आपको ये करना है। हर समय ये छोटी छोटी चीजें आपका 10 मिनट ले लेती हैं और आपको पता नहीं लगता है कि कैसे आपका 3 से 4 घंटा बीत गया और उसके बाद आप बहुत बेकार फील करते हो। आपको ऐसा लगता है कि 12 बज गए हैं और मैंने कोई भी चीज अकॉम्प्लिश नहीं की है। और इसीलिए आपको हर एक छोटे छोटे इनपुट को अपनी लाइफ से हटा देना है, जो आपके टाइम और एनर्जी को धीरे धीरे खींच रही है और आपको पता तक नहीं चल रहा है। इसके लिए आपको एक ढंग का टाइम टेबल बनाना है कि आप 7 से 8 ये करोगे, 8 से 9 ये करोगे, 9 से 10 ये करोगे। इसकी वजह से आप कभी भी इन बेकार चीजों में अपना टाइम वेस्ट नहीं कर पाओगे। हाँ, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आप बाहर जाके कपड़े नहीं खरीद सकते हो, वो काम आप कर सकते हो, पर वो काम पर्पसफुल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि ये समय है आपका काम करने का और आप बाहर जा रहे हो क्योंकि आपके दोस्त ने बुला लिया। ऐसा आपके साथ बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, नहीं तो आप कभी भी कोई भी ढंग का काम नहीं कर पाओगे। आपको नो बोलना सीखना चाहिए कि कैसे मैं किसी और को नो बोल सकता हूं। और अगर आपका दोस्त उसके बाद ऑफेंड हो जाएगा तो फिर वो आपका ढंग का दोस्त नहीं है, उसको वहीं पर छोड़ देना। ऐसे लोग बस आपको पीछे खींचते रहते हैं। फिर थर्ड चीज है मेक अ ग्रेट फिजिक। तो इस समय फिजिक के ऊपर प्रोडक्टिविटी में कोई भी बात नहीं करता है, पर आप एक बार ये सोचो कि आपकी बॉडी अच्छी नहीं है, आप बहुत ज्यादा स्किनी हो, बहुत ज्यादा फैट हो, स्किनी फैट है आपके पास, तो फिर आप कैसे एक जगह बैठ के कोई ढंग का काम कर पाओगे जब आप अपने ऊपर प्राउड फील नहीं करते हो, जब कोई भी आपको ढंग से ट्रीट नहीं करता है। जैसे मेरी फिजिक इस समय बहुत अच्छी है और जब भी मैं अपने आप को शीशे में देखता हूं तो फिर मुझको अपने ऊपर प्राउड फील होता है कि हाँ, मैं हर एक काम कर सकता हूं। पर अगर आपके पास ऐसी फीलिंग नहीं आ रही है, आपके पास बहुत बेकार फिजिक है, तो फिर फिजिक को डेवलप करना आपकी इस समय सबसे पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए। इसके बाद ही आप किसी और चीज में कोई भी अच्छा काम कर पाओगे, चाहे वो डेटिंग में हो, चाहे वो बिजनेस में हो। इसी कारण लोग आपको सीरियस लेंगे, इसी के कारण लोग आपकी रिस्पेक्ट करेंगे और आपके पास भी और ज्यादा कॉन्फिडेंस आएगा, आपके पास भी और ज्यादा मोटिवेशन आएगा, आप डिसिप्लिन सीखोगे, जिसकी वजह से आप अपने बिजनेस में और ज्यादा काम कर पाओगे। इसलिए फिजिक को बिल्ड करना आपकी सबसे पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए अगर आपके पास एक ढंग की फिजिक नहीं है। और फिजिक को बिल्ड करने के लिए आपको वेट को लिफ्ट करना ही करना है। हाँ, आप कोई और काम कर रहे हो, रनिंग कर रहे हो, कोई भी चीज फॉलो कर रहे हो, वो हर एक चीज अच्छी है, पर अगर आप इस समय कोई भी वेट नहीं उठा रहे हो तो फिर आप एक चंप हो, आप कोई भी काम ढंग से नहीं कर रहे हो। आपको हर समय अपने वेट को उठाना है, वेट को उठाना, कभी ना बोलना। ये सारी सोसाइटी है जो कहती है अच्छा वेट उठाने से हम लोग छोटे हो जाते हैं, वेट उठाने में कुछ नहीं रखा है। ये सारे मोटे लोग बोलते हैं कि जिम जाना बेकार है, पर आपको पता है कि वो सब के सब पागल हैं, उन सब के पास कोई भी अच्छी फिजिक नहीं है। इसीलिए आप चाहे जो एक्सरसाइज फॉलो कर रहे हो, मार्शल आर्ट कर रहे हो, चाहे जो कर रहे हो, पर अगर आप इस समय वेट नहीं उठा रहे हो तो फिर आप एक पुसी हो। आपको कभी भी कोई भी ढंग की चीज नहीं मिल पाएगी, आपको कोई भी ढंग की सक्सेस नहीं मिल पाएगी। इसीलिए वेट उठाना आपके लिए एक मस्ट चीज है। और इसके बाद आप अभी जाके मेरे कोर्स को देख सकते हो, जिसकी वजह से 2 ही हफ्ते में
आपकी पूरी लाइफ ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। शुक्रिया।